بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، قانونی اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور تھوڑے سے پیچیدہ موضوع پر بحث کرنے والے ہیں، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گا. تصور کریں کہ ایک شخص جو خود ایک انتہائی سنگین جرم میں برابر کا شریک ہے اور اس کے اپنے ہاتھ خون سے یا بدعنوانی سے رنگے ہوئے ہیں، وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے اور کسی دوسرے شخص کی طرف انگلی اٹھاتا ہے اور سارا الزام اس پر دھر دیتا ہے، یعنی خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا نظام عدل محض ایسے مجرم، مطلب ایک مشکوک اور داغدار شخص کی بات پر یقین کر کے کسی دوسرے کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا سنا سکتا ہے؟ عقل تو یہی کہتی ہے کہ یہ بالکل ناانصافی ہوگی. لیکن آج کی اس تفصیلی گفتگو میں، آج کی اس ویڈیو میں، ہم قانونی شہادت آرڈر کے جس مخصوص حصے پر بات کرنے والے ہیں وہ پوری صورتحال کو ایک بہت ہی حیران کن قانونی شکل دیتا ہے. ہم خاص طور پر قانون میں جسے اکمپلس یا شریک جرم کہتے ہیں اس پر گفتگو کریں گے. معافی دے دی جائے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، تو گویا اکمپلس بھی ایک قسم کا مخبر ہی ہوتا ہے. چلیں بات کرتے ہیں اب شریک جرم کی شہادت کی قانونی حیثیت پر. تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قانون شہادت کے مطابق جو اکمپلس کی ٹیسٹیمنی یا اس کی شہادت ہے اس کا سٹیٹس ڈوئل ہے. نمبر 1 لیگل کمپیٹنسی، یعنی رائٹ ٹو ٹیسٹیفائی، کہ اس کے پاس اختیار، اس کے پاس حق کہاں سے آیا کہ وہ شہادت دے سکے اور وہ ایک کمپیٹنٹ وٹنس بھی ہو سکے. اور دوسرا سٹیٹس ہے اس کا جوڈیشل کریڈیبلٹی، یعنی کورٹس ریلائبلٹی اسیسمنٹ، کہ عدالت کس طریقے سے اس کی شہادت پر غور کرے گی اور اس کی شہادت کو تسلیم کرے گی. جب ہم شریک جرم کی قانونی حیثیت پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے حوالہ آتا ہے آرٹیکل 16 کا. یہ آرٹیکل نہایت ہی دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہے کہ ایک شریک جرم کسی بھی ملزم کے خلاف ایک اہل گواہ، یعنی جسے ہم قانون میں کمپیٹنٹ وٹنس کہتے ہیں، ہو سکتا ہے. مطلب قانون اس شخص کو محض اس بنیاد پر عدالت سے باہر نہیں نکال دیتا کہ وہ خود جرم کا حصہ تھا. وہ کٹہرے میں آ سکتا ہے، حلف اٹھا سکتا ہے، گواہی دے سکتا ہے. بظاہر تو یہ بات اخلاقیات کے بالکل خلاف لگتی ہے کہ ایک مجرم کو سچائی کا پیمانہ کیسے بنایا جا سکتا ہے. لیکن جب ہم ریاستی مشینری اور نظام انصاف کی عملی مجبوریوں کو دیکھیں تو اس کی وجوہات بالکل واضح ہو جاتی ہیں، اور یہ مجبوریاں خاص طور پر منظم جرائم کی صورت میں بہت نمایاں ہوتی ہیں. اگر ایک بہت بڑا ڈرگ کارٹل چل رہا ہے، کام کر رہا ہے، کسی خفیہ دہشت گرد تنظیم کا کوئی سیل کام کر رہا ہے، تو سارے کے سارے جرائم، ساری کی ساری پلاننگ بد کمروں اور تہ خانوں میں ہوگی. وہاں سڑک پر چلنے والا کوئی عام اور معصوم شہری تو گواہ کے طور پر موجود نہیں ہو سکتا. ان جرائم کی نوعیت بھی ایسی ہے کہ ان کے اندر تک رسائی صرف اسی شخص کی ہو سکتی ہے جو خود اس کا حصہ رہا ہو. ہاں، یہ بات بالکل کسی کرائم فلم کے ایک کلاسیکل منظر کی طرح دکھائی دیتی ہے، جہاں بینک لوٹنے میں مدد کرنے والے ڈرائیور کو پولیس پکڑ لیتی ہے اور اسے وعدہ معاف گواہ بننے کی پیشکش کرتی ہے. ریاست کو اس ڈرائیور کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس کے ماسٹر مائنڈ تک پہنچ سکے، جو کبھی خود جرم کے مقام پر نہیں آتا بلکہ پیچھے بیٹھ کر تارے ہلاتا ہے. مطلب یہ کہ ریاست کو دو برائیوں میں سے کم تر برائی کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. دیکھیں، اگر قانون یہ ضد پکڑ لے کہ ہم صرف فرشتوں جیسی خصلت رکھنے والے گواہوں کی ہی بات سنیں گے تو پھر بڑے اور منظم جرائم کے سرغنہ تو کبھی نہیں پکڑے جا سکتے. مطلب ڈرائیور کی گواہی کے بغیر شاید کبھی یہ ثابت ہی نہ ہو سکے کہ اس پوری واردات کا اصل منصوبہ ساز کون تھا اور نامعلوم ملزم کون تھے جنہوں نے جرم کو سرانجام دیا. اس لیے آرٹیکل 16 اس عملی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے اور شریک جرم کو کٹہرے میں کھڑے ہونے کے قابل بناتا ہے اور اس کو کھڑے ہونے کو قانونی حیثیت دیتا ہے. یعنی ریاست ایک مجرم کو رعایت دے کر دوسرے بڑے مجرم کو قانون کے شکنجے میں لانے کا سودا کرتی ہے. لیکن یہاں ایک بہت بڑا لیکن موجود ہے. وہ دیوار جو قانونی شہادت کے آرٹیکل 16 کے اندر ہی کھڑی کی گئی ہے. کیونکہ جب ہم قانون کا مزید مطالعہ کرتے ہیں
तो ये आर्टिकल शरीक जुर्म को अहल गवाह तो मानता है, लेकिन साथ ही एक गैर मामूली इस्तिस्ना भी पेश कर देता है, जिसे हम एक्सेप्शन कहते हैं। और वो इस्तिस्ना ये है कि इन जराइम में शरीक गवाह की गवाही काबिल कबूल ही नहीं होगी जिनकी सजा हद के जुमरे में आती है। कानून बहुत ही मोटी लकीर खींच देता है, बहुत वाजे। एक आम जुर्म में तो शरीक जुर्म गवाह बन सकता है, लेकिन अगर जुर्म की सजा हद है तो वो अचानक नाअहल हो जाता है। यहाँ ये सवाल अहम है और हमारे जहन में आता है कि ऐसा क्यों है? कानून एक आम जुर्म और हद वाले जुर्म में गवाह की अहलियत में इतना बड़ा फर्क क्यों रखता है? इसको समझने के लिए हमें हद की कानूनी और शरई तसव्वुर को समझना होगा। पाकिस्तानी कानून शहादत और इस्लामी फिका में हद से मुराद वो सजाएं हैं जो कुरान और सुन्नत में वाज़ेह सूरत में मुकर्रर कर दी गई हैं, जिनमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। इनमें जज को किसी किस्म की कमी बेशी करने का कोई स्वाबदीदी इख्तियार नहीं होता, जैसे चोरी, जना, कज़फ, हिराबा जैसे संगीन जराइम। इन जराइम की सजाएं इंतहाई सख्त, कतई और नाकाबिले वापसी होती हैं। अब चूंकि इस्लामी निज़ाम अदल का बुनियादी असूल ये है कि अदना सा शक भी हद की सजा को साकित कर देता है, इसलिए इन मुकदमात में सबूत का मेयार यानी स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ भी बहुत बुलंद होता है। आम मुकदमात की निस्बत गैर मामूली हद तक बुलंद। हम ये कह सकते हैं कि कानून यहाँ दरअसल एक तवाज़ुन पैदा करता है। मतलब आम जराइम जिनकी सजाएं ताज़ीर के जुमरे में आती हैं, इनमें थोड़ी बहुत लचक मौजूद होती है। रियासत समाज को बचाने के लिए इस मशकूक गवाह का खतरा मोल ले लेती है, लेकिन जब बात हद की आती है जहां सजा नाकाबिले वापसी है, तो रियासत खतरा मोल लेने से इनकार कर देती है। हद के मुकदमात में गवाह का तज़किया तो शहूद लाजमी होता है, यानी गवाह का इखलाकी मेयार उसे इखलाकी तौर पर बेदाग, सच्चा और काबिल एतमाद और काबिल एतबार होना चाहिए। और एक शख्स जो खुद इतराफ कर रहा है कि वो शरीके जुर्म था, बेदाग नहीं हो सकता। शरई लिहाज से वो फासिक के जुमरे में आता है और इसकी गवाही में शक का अंसर फितरी तौर पर शामिल हो जाता है। इसलिए कानून वाज़ेह अल्फाज में कहता है कि जब भी किसी की जान के बदले जान लेने या अज़ा के बदले अज़ा काटने जैसी हतमी सजा का मरहला हो, तो हम किसी ऐसे शख्स के बयान पर इन्हिसार नहीं कर सकते जिसकी अपनी साख ही दागदार हो। वहां सिर्फ गैर जानिबदार और बेदाग गवाह चाहिए, और ये एहतियात का एक शानदार पहलू है। लेकिन यहां से कानून शहादत में एक ऐसा तजाद जन्म लेता है जो शायद कानून शहादत के पढ़ने वालों के लिए, तालिब इल्मों के लिए एक इंतहाई दिलचस्प मोड़ होगा। ये तजाद आर्टिकल 16 और 129B का तजाद है। अगर हम हद को एक तरफ रख दें और आम मुकदमात की बात करें, तो आर्टिकल 16 का दूसरा हिस्सा एक अजीब सी बात कहता है। वो कहता है कि अगर मुल्ज़िम को महज एक शरीके जुर्म की गवाही पर सजा दे दी जाए जिसके लिए किसी और सबूत या तस्दीक की तायद की जरूरत नहीं और नहीं हो रही, जिसे हम अनकराबोरेटेड टेस्टिमनी कहते हैं, तो महज इस बगैर तस्दीक शुदा गवाही की बुनियाद पर, यानी अनकराबोरेटेड टेस्टिमनी की बुनियाद पर वो सजा गैर कानूनी तस्वर नहीं की जाएगी। यानी जज के पास ये इख्तियार है कि वो सिर्फ एक शरीके जुर्म की बात सुने और दूसरे शख्स को जेल में भेज दे। ये शिक वाकई पहली नजर में हर किसी को उलझा सकती है, क्योंकि कानून एक तरफ तो मान रहा है कि ये शख्स मुजरिम है, दूसरी तरफ जज को ये इख्तियार भी दे रहा है कि वो तनहा गवाही पर किसी की आजादी छीन दे। ये उलझन उस वक्त अपने अरूज पर पहुंच जाती है जब हम आर्टिकल 129 की शिक बी का मुतालिया करते हैं, जो कहता है कि एक शरीके जुर्म काबिल एतबार नहीं, वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है जब तक के अहम हकायक से उसकी गवाही की तस्दीक ना होती हो। तो बुनियादी तौर पर कानून ये कह रहा है कि बगैर तस्दीक के सजा देना जो है वो कानूनी नहीं होगा। यानी आर्टिकल 129B में कह रहा है कि बगैर तस्दीक के उस पर एतबार मत करो। ये तो ऐसे ही लगता है जैसे कोई शख्स कहे कि बिना ब्रेक वाली गाड़ी चलाना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन कानून ये भी जानता है कि उस पर सफर करना सरासर हमाकत है। और आर्टिकल 129B इसी गाड़ी पर लगा हुआ वार्निंग साइन है। देखें, कानून की जुबान में इस बज़ाहिर नजर आने वाले तजाद को रूल ऑफ लॉ
और रूल ऑफ प्रूडेंस के फर्क से समझा जा सकता है। जो आर्टिकल 16 में है ना, वो कानून का असूल यानी रूल ऑफ लॉ है। ये अदालत के दायरा इख्तियार का तयन करता है। ये बताता है कि टेक्निकल सतह पर एक जज के पास ये ताकत, ये पावर मौजूद है कि वो शरीके जुर्म की तनहा गवाही पर सजा सुना दे। अगर कोई जज ऐसा कर गुजरता है तो आला अदालत इस फैसले को सिर्फ इस टेक्निकल बुनियाद पर कालादम करार नहीं देगी कि ये फेल गैर कानूनी था, यानी इख्तियार मौजूद था। दूसरी तरफ आर्टिकल 129 बी एहतियात और दानिशमंदी का असूल है, यानी जिसे हम रूल ऑफ प्रूडेंस कहते हैं। ये जजों के लिए एक कड़ी गाइडलाइन है कि जब आपने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है। यहाँ पर हमारे जहन में एक सवाल आता है कि अगर वार्निंग साइन नहीं लगाना था तो सीधा सीधा इस काम को गैर कानूनी क्यों नहीं कर दिया। मतलब जज के हाथ में ये इख्तियार दिया ही क्यों गया कि वो इस बिना ब्रेक वाली गाड़ी को सड़क पर लाए। कानून साजों ने आर्टिकल 16 को सजा में कानून साजों ने आर्टिकल 16 में सजा को गैर कानूनी डिक्लेयर क्यों नहीं कर दिया, सारा झंझट ही खत्म हो जाता। लेकिन इसका सीधा सा जवाब यह है कि कानून जज के हाथ मुकम्मल तौर पर बांधना नहीं चाहता, क्योंकि बाज औकात बहुत गैर मामूली हालात में शरीके जुर्म की गवाही इतनी शफाफ, इतनी मरबूत और हालातों वाकयात से इस कदर हम आहंग होती है कि एक तजर्बाकार जज को उसकी सच्चाई पर कोई शक नहीं रहता, यानी कहानी इतनी परफेक्ट होती है कि शक की गुंजाइश नहीं रहती। शायद किसी वजह से बैरूनी तस्दीक तलाश करना नामुमकिन हो चुका हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो गवाही अपने आप में बिल्कुल मुकम्मल लग रही हो, तो कानून इस नादर सूरत हाल में जज को ये स्वाबदीद यानी डिस्क्रिप्शन देता है। लेकिन इसके साथ ही तारीखी तजर्बात की रोशनी में आर्टिकल 129 बी के जरिए जज को सख्ती से मुतनब्बे किया जाता है कि आम हालात में इस इख्तियार का इस्तेमाल नाइंसाफी को जन्म दे सकता है। ये सदियों के अदालती तजर्बात का निचोड़ है कि मुजरिमों की बातों पर अंधा एतबार करने से बेगुनाह लोग तख्तादार पर झूल सकते हैं। इसलिए इख्तियार तो दिया गया है, मगर इसके इस्तेमाल पर एक कड़ी नफ्सियाती पाबंदी भी आयद कर दी गई है। इख्तियार और उसके इस्तेमाल के दरमियान की ये जो बारीक सी लकीर है, यही दरअसल अदालती निजाम का हुस्न है। सोचिए, अगर आर्टिकल 129 बी ये कहता है कि मादी हकायक यानी मटीरियल पर्टिकुलर्स की से तस्दीक होनी चाहिए, तो इस तस्दीक की अपनी शक्ल क्या होती है। सिर्फ ये तो नहीं हो सकता ना कि गवाह अदालत में एक बहुत ही सनसनीखेज और तफसीली कहानी सुनाए और जज महज इसकी कहानी की रवानी से मुतासिर होकर उसे सच मान ले। इसका जवाब है नहीं। तस्दीक, जिसे कानून की जुबान में करॉबोरेशन कहते हैं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि शरीके जुर्म अपनी ही कहानी को बार बार दोहराएं या कोई दूसरा शरीके जुर्म वही कहानी सुना दे जो पहले शरीके जुर्म ने अदालत के सामने बयान की थी। देखें, वो दो झूठे मिलकर भी एक सच नहीं बनाते। मादी तस्दीक या मटीरियल करॉबोरेशन का मतलब है कि शरीके जुर्म जो कहानी सुना रहा है उसके कुछ अहम और ठोस हिस्सों की तायद किसी बैरूनी, आजाद और गैर जानिबदार जराए से भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक अगवा बराए तावान के मुकदमे में शरीके जुर्म गवाही देता है कि हमने मगवी को शहर के मजाफात में एक पुराने गोदाम में रखा था। इस दौरान उसे फलां मुकामी होटल से खाना मंगवा कर देते थे। अब अगर पुलिस तफ्तीश के दौरान उस गोदाम तक पहुंच जाती है, वहां से मगवी के बालों के नमूने या उंगलियों के निशानात मिल जाते हैं और उस मखसूस होटल के बिल भी बरामद हो जाते हैं, तो ये गवाह की बात की मादी हकायक यानी मटीरियल पर्टिकुलर्स के जरिए आजादाना तस्दीक है। यानी गवाह के अल्फाज को बैरूनी दुनिया के हकायक से सहारा मिलना जरूरी है। जब ये अल्फाज और हकायक आपस में जुड़ते हैं, तब जाकर गवाही इतनी मजबूत होती है कि इस पर किसी को सजा सुनाई जा सके। लेकिन इन सब बातों के पीछे जो सबसे बुनियादी सवाल छुपा है, वो जो मुझे सबसे ज्यादा अपनी तरफ मुतवज्जे करता है कि आखिर कानून को एक शरीके जुर्म पर इतना शक क्यों है। और मेरा ख्याल है इसका जवाब हमें आर्टिकल 129 बी के इस इब्तदाई हिस्से में मिलता है, जो इस पूरे अदालती निजाम को खालिस्तन इंसानी नफ्सियात से जोड़ता है। आर्टिकल 129 का पहला हिस्सा दिबाचा कानून शहादत के सबसे ताकतवर हिस्सों में से एक है। ये अदालत को इख्तियार देता है कि वो बाज हकायक को
फर्ज या प्रज्यूम कर सकती है, और ये मफरूजों की बुनियाद ये मफरूजे कायम किए जा सकते हैं। कानून के अल्फाज में कुदरती वाकयात के आम सिलसिले, इंसानी रवैयों, अवामी और निजी मामलात की बुनियाद पर यहाँ जो अल्फाज इंसानी रवैयों यानी ह्यूमन कंडक्ट से इस्तेमाल हुआ है ना, ये दरअसल पूरी बहस की जान है। इसका मतलब ये हुआ कि कानूनी शहादत सिर्फ सबूतों के इंदराज का तरीकाकार नहीं, बल्कि ये इंसानी फितरत या ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बाकायदा मुतालिया है। मतलब कानून मानकर चल रहा है कि मखसूस हालात में एक इंसान मखसूस तरीके से ही रिएक्ट करता है। जब बात एक ऐसे शख्स की हो जिसकी अपनी गर्दन फंसी हुई हो, उसका रवैया कैसा होगा? जाहिर सी बात है उसकी बका की जबिल्लत, जिसे हम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं, वो अपने अरूज पर होगी। वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। कानून साज इंसान की इस फितरी कमजोरी से बखूबी वाकिफ थे। जब एक शरीके जुर्म पुलिस की हिरासत में होता है, उस पर इतना दबाव होता है, उसे छोटी सजा के बदले किसी बड़े गैंग लीडर के खिलाफ गवाही देने का लालच दिया जाता है, तो उसके पास झूठ बोलने की एक बड़ी वजह होती है। बिल्कुल, और वो अपने किरदार को, अपने रोल को इंतहाई छोटा करके पेश करेगा, सारा मलबा दूसरों पर डाल देगा। वो कहेगा मंसूबा तो इनका था, हथियार भी इनके थे, मैं तो महज खौफ के मारे बाहर गाड़ी में बैठा था। और कानून जानता है कि ये इंसान की फितरत है कि वह सजा से बचने के लिए अपना बोझ किसी और के कंधों पर डालने की कोशिश करता है। इसी नफ्सियाती हकीकत की बुनियाद पर आर्टिकल 129B भी खड़ा है। ऐसे शख्स पर एतबार मत करो जब तक आजादाना सबूत मौजूद ना हो। यहाँ से अंदाजा होता है कि एक जज का काम महज कानून की किताब देखकर फैसला सुनाना नहीं। कानून खुद जज से तकाजा कर रहा है कि वो कटहरे में खड़े शख्स की नफ्सियात पढ़े। उसे ये देखना है कि उस गवाह का अपना मफाद क्या है, उसके अंदर छुपा हुआ खौफ क्या है, और क्या वो महज अपनी खाल बचाने के लिए किसी बेगुनाह या अपने किसी पुराने दुश्मन को इस केस में घसीट तो नहीं रहा। ये चीज कानूनी शहादत को एक खुश किताब से निकालकर एक जिंदा और मुतहर्रक इल्म बना देती है, जो अदालत के कमरे में मौजूद हर शख्स के जहन को पढ़ने की कोशिश करता है। एक बेहतरीन जज वो होता है जो इंसानी रवैयों को बेहतरीन अंदाज में परखने वाला हो। कानून एक फ्रेमवर्क, एक खाका मुहैया करता है, लेकिन इस खाके में रंग भरने का काम जज का अपना है। यानी हकायक की जांच पड़ताल जज के अपने तजर्बे, उसकी मुशाहिदाती कुव्वत और इंसानी फितरत को समझने पर डिपेंड करती है। जी हाँ, कानून का ये पहलू इस बात की गवाही देता है कि हमारा निज़ाम कोई मशीनों का तैयार करदा बेहिस निज़ाम नहीं, बल्कि ये इंसानों ने इंसानों के लिए बनाया है। ये इंसानी कमजोरियों से पूरी तरह आगाह है। ये इंसानी कमजोरियों को पूरी तरह तस्लीम करता है। तो आज की इस तफसीली गुफ्तगू में को अगर हम समेटें तो सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आती है, वो निज़ाम अदल का जबरदस्त तवाज़ुन है। एक तरफ माशरे को संगीन जराइम से पाक करने के लिए रियासत को मुजरिमों के साथियों की जरूरत पड़ती है, जिसे हम आर्टिकल 16 के तहत कानून जवाब फराहम करते हैं। रियासत बंद कमरों में साजिशों को बेनकाब करने के लिए इन्हीं साजिशों को इस्तेमाल करती है, और दूसरी तरफ रियासत ये भी यकीनी बनाती है कि इस मजबूरी का फायदा उठाकर कोई झूठा शख्स किसी बेगुनाह शख्स को फांसी पर चढ़ाने का सबब न बन जाए। और इस खतरे को टालने के लिए आर्टिकल 129 की शिक बी के तहत तस्दीक को एक मजबूत ढाल फराहम की जाती है, और हद जैसे संगीन मुकदमात में तो इस दरवाजे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। इख्तियार और एहतियात का ये जो इम्तिजाज है, ये कानूनी शहादत का असल हुस्न है। इन दफात को इतनी गहराई से देखने के बाद कानून के बारे में हमारा तासुर मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। लेकिन इस गुफ्तगू को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना जरूरी है, जो इस कानूनी दायरे से निकलकर हमारे माशरे के मुस्तकबिल की तरफ इशारा करता है। देखिए, आर्टिकल 129B जजों को ये इख्तियार देता है कि वो इंसानी रवैयों और कुदरती वाकयात के आम सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए मफरूजे कायम करें, यानी परज्यूम करें। लेकिन क्या इंसानी रवैया एक जामद चीज है? जरा सोचिए, 1984 में जब कानूनी शहादत नाफिज हुआ था, उस वक्त का इंसान, उसके खौफ, उसकी लालच, उसकी बका की जबिल्लत का इजहार बहुत मुख्तलिफ था। आज हम एक
डिजिटल दौर में जी रहे हैं। आज सब कुछ बदल गया है। आज हमारे राब्ते, जर्म करने के तरीके, पकड़े जाने पर खुद को बचाने की नफ्सियात, सब कुछ बदल गया है। टेक्नोलॉजी ने इंसानी रवैयों को भी बिल्कुल नई शक्ल दे दी है। तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या वक्त और मुआशरे के इस इर्तिका के साथ इंसानी फितरत को परखने का ये अदालती पैमाना भी इसी रफ्तार से इर्तिका पा रहा है कि अदालत के कमरे में बैठा जज आज के इस डिजिटल इंसान के इस रवैये को इसी तरह पढ़ सकता है जैसे दहाइयों पहले पढ़ता था। क्या इंसानी बका की इन नई शक्लों को कानून के मौजूदा सांचे में पूरी तरह ढाला जा सकता है? अदालती निज़ाम के लिए सवाल एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आगे भी रहेगा, क्योंकि कानून कागज पर लिखा होता है, लेकिन इंसानी फितरत मुसलसल बदलती और पेचीदा होती रहती है। आप सब भी कानून, इंसाफ और इंसानी नफ्सियात के इस ताल्लुक पर गौर जरूर कीजिएगा कि किस तरह सच और झूठ की पहचान महज सबूतों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इंसान के जहन की गहरी तहों तक चली जाती है। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।